Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में 11, 12 और 13 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलिए आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी मनी होगी, आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा होगा। अब फेस्टिवल सीजन आपका पढ़ाई पर वापस आते हैं। आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया, आपने एंजॉय किया, लेकिन अब वापस आते हैं, फोकस करते हैं अपनी पढ़ाई पर। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सा एडिशन वर्ल्ड फूड इंडिया का भी इनॉग्रेट करा गया था? तो याद रखेंगे ये सेकेंड एडिशन था वर्ल्ड फूड इंडिया का, जो कि पीएम मोदी के द्वारा भी इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये लोकेशन कहाँ पर हुआ था ये इवेंट? भारत मंडपम, जो कि न्यू दिल्ली में है। 3 नवंबर से शुरू होकर ये आपका 5 नवंबर तक ये आपका इवेंट था। करेक्ट। इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था? इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे यहीं पर पीएम मोदी ने फूड स्ट्रीट एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया ये भी इनॉग्रेट किया। करेक्ट। तो एडिशन आ जाता है सेकेंड। और इसी के साथ साथ एक मैस्कॉट भी याद रखेंगे, वो है मिलिंड। करेक्ट। ये क्या है? ये एक फूड प्रोसेसिंग रोबोट का नाम है मिलिंड, एंड ये मैस्कॉट रहेगा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का। तो इसको मार्क करके चलेंगे यहाँ पर। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे एक सीड कैपिटल ऑफ 380 करोड़ रुपीस ये प्रोवाइड किया जाएगा टू मोर देन 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। करेक्ट। ताकि उनको यहाँ पे सीड के लिए कैपिटल एड पैसा प्रोवाइड कराया जा सके। फिर इसी के साथ साथ हाइफन फूड्स इन्होंने अभी एक एमओयू साइन किया है लुलु ग्रुप के साथ, ताकि जो फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर सेल किया जा सके अंडर द ब्रांड लुलु। तो किन्होंने हाइफन फूड्स ने लुलु ग्रुप के साथ ये एमओयू साइन करा। ठीक है। तो मार्क करके चलेंगे, ये है आपका वर्ल्ड फूड इंडिया। नेक्स्ट आता है किस कंट्री ने अभी होस्ट किया छठा एडिशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये एक जॉइंट वेंचर था जो कि इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा स्टार्ट करा गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 2015 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में। देन नेक्स्ट थिंग याद रखेंगे यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? अजय माथुर। करेक्ट। और अभी इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? अभी तक 94 मेंबर्स थे, अब टोटल 95 मेंबर्स हो गए हैं, और जो 95th मेंबर बना है वो है चिली। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस कंट्री ने अभी छठा एडिशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस को होस्ट किया? तो छठा एडिशन इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है। मार्क करके चलेंगे इसको। फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 95th मेंबर अभी कौन सा बना है? ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो है चिली। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर
यहीं पे अगर आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछूं मैं, जैसे ज़रा बताओ कॉलिन वर्ड ऑफ द ईयर, कॉलिन्स की डिक्शनरी आती है, तो कॉलिन्स वर्ड ऑफ द ईयर 23 कौन सा रहेगा? वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसी के दो साथ साथ बताओ काउ सेंसस, अभी काउ सेंसस कराया गया था किस स्टेट के द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा काउ सेंसस कराया गया था। ठीक है, फिर ज़ैंज़िबार में वो पहला कौन सा आईआईटी बन रहा है जो कि अपना एक इंटरनेशनल कैंपस खोल रहा है ज़ैंज़िबार में? वो है आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास। देन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को, गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है? तो आने वाले 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को, आने वाले 5 साल के लिए। ठीक, फिर एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोला जा रहा है यूएई में, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एक नया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोल रही है, कहाँ पर? यूएई में। फिर कौन सी कंट्री फ्री ऑफ वीज़ा प्रोवाइड कर रही है इंडियंस को नवंबर से लेके जैन एंड तक? एंड ये किस लिए है? टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, तो वो है थाईलैंड। नेक्स्ट, आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, आरईसी ने अभी रिसेंटली एमओयू साइन किया रेलटेल के साथ, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है ना उनको फाइनेंस किया जा सके इन टेलीकॉम सेक्टर, आईटी सेक्टर, रेलवे सिग्नलिंग एक्सेट्रा। और यहीं पर एक एमओयू के, इस एमओयू के अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी 30,000 करोड़ रुपीस की, और ये 30,000 करोड़ रुपीस आने वाले 5 साल में स्पेंड किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप क्या होगा? जैसे आपका जैसे हाई स्पीड रेल, मेट्रो, आईटी नेटवर्क, इनको अपग्रेड किया जाएगा, रेलवे नेटवर्क्स को अपग्रेड किया जाएगा, डाटा सेंटर्स को खोला जाएगा, राइट, नए नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स आएंगे, कवच ट्रेन कोलिजन प्रिवेंशन सिस्टम, इसको और जगह से और बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करने का यहाँ पे काम करा जाएगा। करेक्ट, तो इसीलिए आरईसी ने रेलटेल के साथ एमओयू साइन किया फॉर दिस। और यहीं पे एक और चीज़ याद रखेंगे, इसके अंडर हम बात कर रहे हैं कि हम वेरियस सेक्टर्स में, वेरियस कंट्रीज में, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीकन रीजन, ईस्टर्न अफ्रीका, यहाँ पर जहाँ पे रेलटेल ऑलरेडी वर्क कर रहा है वहाँ पर भी इन प्रोजेक्ट्स को अपग्रेड करने की बात की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे मैं पूछूं, ज़रा बताओ अभी रिसेंटली ग्लोबल हाउसिंग प्राइस राइज, ग्लोबल हाउसिंग प्राइस राइज, राइट, यहाँ पर मुंबई की क्या रैंक रहेगी इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, ग्लोबल हाउसिंग प्राइस राइज में? मतलब जो घरों की वैल्यू बढ़ी है, करेक्ट, उनका रेट बढ़ा है, उसमें मुंबई कौन से रैंक पर आता है? तो मुंबई 4th पोजीशन पे आ जाता है इन द ग्लोबल हाउसिंग प्राइस राइज। ठीक, फिर अभी किस यूनिवर्सिटी के द्वारा अपनी खुद की एक सैटेलाइट लॉन्च की गई? वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा उनकी खुद की अपनी एक ओन सैटेलाइट को लॉन्च करा गया। नेक्स्ट, DNRLM, इन्होंने एक एमओयू साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? टू प्रमोट वीमेन एंटरप्राइजेस। तो याद रखेंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इन्होंने सिडबी के साथ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया, ताकि जो वीमेन लेड एंटरप्राइजेज हैं इंडिया में उनको प्रमोट किया जा सके। और कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए इनका टाइम टर्म रहेगा जहाँ पर ये एमओयू साइन किया। तो ऑप्शन सिडबी यहाँ पर करेक्ट रहेगा, राइट। DNRLM, इन्होंने एक एमओयू साइन किया किसके साथ? सिडबी के साथ, टू प्रमोट वीमेन एंटरप्राइजेज। और राइट, 2 साल के लिए एमओयू साइन रहेगा यहाँ पर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प करने के लिए, नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने के लिए, उनका एक प्रोसेस, प्रॉपर प्रोटोकॉल, एक सिस्टम, एक प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये एमओयू साइन किया गया। अगर सिडबी की मैं बात करूं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? वो हैं शिवा सुब्रमण्यम रमन जी, हेडक्वार्टर है लखनऊ यूपी में, एंड 1990 में सिडबी को इस्टेब्लिश करा गया था। अगर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे कुछ और पूछूं, जैसे ज़रा बताओ WHO का SEAR रीजन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन को लीड कौन करेंगी? साइमा वाजीद। देन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के, भेल के? वो है कोपू सदाशिव मूर्ति जी। देन टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? दीपेश नंदा, करेक्ट। देन श्री सोमनाथ ट्रस्ट के जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड सिडबी, इन्होंने एक एमओयू साइन किया टू प्रमोट वीमेन लेड एंटरप्राइजेज इन इंडिया एंड द एमओयू इज सेट फॉर द स्पैन ऑफ 2 years। फिर अगर मैं पूछूं फीफा वर्ल्ड कप 2034
का कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? सऊदी अरेबिया होस्ट करेगी 2034 का। ठीक है, फिर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अभी किनका स्टैचू अनवेल किया गया? तो सचिन तेंदुलकर का स्टैचू अनवेल किया गया। कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम में। और सचिन तेंदुलकर को ही नेशनल आइकन अपॉइंट किया गया था चीफ इलेक्शन कमीशन ने। एंड इसी के साथ साथ अगर याद हो तो राजकुमार राव को भी नेशनल आइकन अपॉइंट किया गया था चीफ इलेक्शन कमीशन ने, ताकि जो वोटर अवेयरनेस है वो क्रिएट की जा सके। नेक्स्ट आते हैं फिर, एक एमओयू साइन किया गया भी रिसेंटली बिटवीन आईआईएस कानपुर। आईआईएस क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, राइट। आईआईएस कानपुर ने एमओयू साइन किया आईआईटी कानपुर के साथ। देन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड डीएएसआई, ये क्या है? डसॉल्ट एयरक्राफ्ट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनके साथ ये एमओयू साइन किया इन्होंने। ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बीच में एमओयू साइन हुआ। एंड जो एमओयू साइन हुआ है किस लिए? एरोस्पेस एंड डिफेंस, इन 2 सेक्टर्स में यूथ के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए, उनको स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एंड उनको एंकरेज करने के लिए कि वो इन सेक्टर्स में आके पार्टिसिपेट करें। तो आईआईएस कानपुर, आईआईटी कानपुर, हॉल एंड डीएएसआई, इनके बीच में एमओयू साइन हुआ ताकि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड की जा सके यूथ की इन दीज पर्टिकुलर सेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, आपको मॉड्यूल्स प्रॉपर एक सिलेबस बनाया गया जहां पर इन लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करने की बात की गई, स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाता है, अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलके एक रिपोर्ट रिलीज की गई। एंड इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो लोग सन के अंडर काम करते हैं, धूप में काम करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, उसमें से 1/3 डेथ ऐसी होती हैं जो कि नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर की वजह से होती हैं, स्किन कैंसर। और ये नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर किसकी वजह से होता है? ये यूवी रेडिएशन की वजह से होता है जो कि सन से डायरेक्ट आता है। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से आपका ये नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर होता है, जिसकी वजह से आपकी 1/3 डेथ्स जो होती हैं, जो लोग अंडर द सन काम करते हैं उनकी 1/3 डेथ इसी की वजह से होती है। ठीक है, ये डाटा किसके द्वारा? WHO एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलके इसको रिलीज किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई की। अभी कैफरेल क्या है? सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, इनकी अभी फर्स्ट एडिशन की एक फ्लैगशिप पब्लिकेशन की रिपोर्ट रिलीज की गई जो है इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023, IFR 2023। ये फर्स्ट एडिशन था इस IFR का ऑफ कैफरेल। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि हम जानते हैं कि फिनटेक सेक्टर ग्रो करता जा रहा है, राइट। फिनटेक इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है, काफ़ी अलग अलग कंपनीज आ रही हैं। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि जो दबदबा था ना बैंक्स का, वो कम हो जाएगा और उनकी जगह कौन ले लेगा? ये आपके फिनटेक सेक्टर ले लेगा, राइट। फिनटेक कैन एमर्ज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर ट्रेडिशनल बैंकिंग, जो हमारे ट्रेडिशनल बैंक्स थे उनकी जगह कौन ले लेगा? ये फिनटेक सेक्टर। जैसे पेटीएम हो गया, आपका फोन पे हो गया, करेक्ट, ये आपकी जगह लेंगे किनकी? जो ट्रेडिशनल बैंक की होंगी। फिर यहीं पे याद रखेंगे जो थीम रहेगी इस रिपोर्ट की, वो क्या थी? कनेक्टिंग द लास्ट माइल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, आरबीआई की बात करें तो शक्तिकांत दास, 4 डेप्टी गवर्नर्स थे। शक्तिकांत दास को A+ की रेटिंग मिली थी और अभी पे ग्लोकल को आरबीआई का अप्रूवल मिल गया टू बी एज अ पेमेंट एग्रीगेटर, या उनको लाइसेंस मिल गया पेमेंट एग्रीगेटर का। ठीक, फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ वर्ल्ड वेगन डे कब ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड वेगन डे को 1 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड वेगन डे। देन सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? वो है विराट कोहली। ठीक, फिर किस कंट्री ने होस्ट किया 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप को? तो ये होस्ट किया गया और ये होस्ट करेगा बांग्लादेश। और कब होस्ट करेगा? 2025 में होस्ट करेगा। करा नहीं गया, अभी होगा ये। ठीक है, फिर पहले वो व्यक्ति कौन बने जो कि टाइम्ड आउट, ये क्रिकेट में डिसीजन था। अगर आपने क्रिकेट देखा हो तो वो 5 मिनट से ज़्यादा उन्होंने लगा दिया था, करेक्ट। तो वो बैटर थे एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका के प्लेयर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये टाइम्ड आउट, क्योंकि लेट हो गए थे ये खेलने के लिए, इनके हेलमेट में कोई दिक्कत आ गई थी, वो ठीक करने लग गए। तो बांग्लादेश की टीम ने बोला कि ये तो टाइम ज़्यादा लगा दिया इन्होंने, तो ही शुड बी टेक्निकली आउट एज पर द रूल्स। तो इनको आउट दे दिया गया। कौन थे ये? एंजेलो मैथ्यूज। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट बात करते हैं अभी रिसेंटली US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन DFC, इन्होंने अनाउंस किया एक ऑफर ऑफ $553
मिलियन डॉलर। ये जो $553 मिलियन का जो अमाउंट रहेगा ना, ये प्रोवाइड किया जाएगा अडानी के कोलंबो पोर्ट टर्मिनल को, ताकि उसकी डेवलपमेंट की जा सके एज द डीप वाटर शिपिंग कंटेनर टर्मिनल। ये अभी ऑलरेडी 90% अपनी कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है सिंस 2021, तो इसको थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए एंड यहाँ पे और इसकी डेवलपमेंट के लिए, ताकि ये और बड़ा हो सके एंड ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड करा जा सके इस पोर्ट पर, इसीलिए ये एमओयू साइन किया गया। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बताओ, इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? मुंबई में स्टार्ट हुई। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल आया है किनका? जाहिद हुसैन का, जाहिद हुसैन का। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली 10 दिन लंबा उत्तराखंड महोत्सव कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है 10 दिन का उत्तराखंड महोत्सव। ठीक है, फिर रन फॉर यूनिटी, ये एक इवेंट हुआ था लखनऊ में। पूछा जा रहा है किनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हुआ? सरदार पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी पर रन फॉर यूनिटी एक इवेंट हुआ, कहाँ पर? लखनऊ में। नेक्स्ट आ जाता है फ्लाइंग वेज। फ्लाइंग वेज ये एक बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। ठीक है, ये वो पहली कंपनी बनी जिनको टाइप सर्टिफिकेशन मिला फ्रॉम डीजीसीए फॉर यूएएस। अब ये यूएएस क्या है? यूएएस होता है आपका अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, और ये जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है इसका नाम क्या रहेगा? FWDA-10। करेक्ट, इसको अभी टाइप सर्टिफिकेशन मिला है डीजीसीए से। करेक्ट, और वो किस कंपनी का है? फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड ये आपकी कंपनी रहेगी। इनको यहाँ पे ये टाइप सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, और ये जो टाइप सर्टिफिकेट है ये आप देख सकते हैं FWDA-10, ये यूएएस का नाम है जिनको ये सर्टिफिकेट मिला। इनके प्रॉपर डिजाइन, मटेरियल स्पेसिफिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मेंस के लिए एंड फॉर देयर सेफ ऑपरेशन इनको ये टाइप सर्टिफिकेशन मिला फ्रॉम डीजीसीए। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया ने अपॉइंट किया वेंकट नागेश्वर चलासानी को एज देयर न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव। याद रख के चलेंगे, फॉर्मर डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप SBI के जो अभी नए चीफ एग्जीक्यूटिव, इनको वेंकटा रमन जी को, राइट, वेंकटा नागेश्वर चलासानी जी को इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया। ये किनको रिप्लेस करेंगे? NS वेंकटेश को रिप्लेस करेंगे, जो कि 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म पर थे फॉर 3 ईयर्स ईच, मतलब 6 साल से, कब से? अक्टूबर 2017 से अभी 2023 तक। ठीक, AMFI की बात करें, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की, तो चेयरमैन कौन है? वो है मिस्टर नवनीत मुनोत। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अ न्यू स्पीशीज ऑफ वास्प, अभी डिस्कवर की गई केरला में। करेक्ट, नई स्पीशीज है वास्प की, कहाँ पर? वेस्टर्न घाट में, इन द हिल्स एरिया ऑफ केरला ये डिस्कवर की गई, जिसका नाम रहेगा टेनियोगोलास धीरिटे। और ये धीरिटे क्यों नाम रखा गया? क्योंकि डॉक्टर धीरती बनर्जी इनके नाम पर ये आपका नाम रखा गया इस स्पीशीज का ऑफ वास्प का, और ये पहली वीमेन डायरेक्टर बनी है ZSI की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पे बात करते हैं, तो नेशनल आयुर्वेदा डे 10 नवंबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसका मेन एम रहेगा टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द हेल्थ इश्यूज, जो कि आपकी आयुर्वेदा से हम ट्रीट कर सकते हैं और उसकी प्रिवेंशन में हेल्प आ सकता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। ये डे जो होता है आपका 10 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम याद रखेंगे, क्या रहेगी थीम? आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, ये आपकी थीम रहेगी आयुर्वेदा डे की। करेक्ट, 10 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2016 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, और 8वां एडिशन है इस नेशनल आयुर्वेदा डे का 2023 में। फिर इसके बाद आ जाता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। कब ऑब्जर्व करते हैं? 10 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड जो इंपॉर्टेंस है साइंस का इन आवर सोसाइटी, उसको ग्रो करने का, उसका डेवलपमेंट में उसका जो रोल आता है, उसके लिए हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। करेक्ट, उसकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व करते हैं। थीम रहेगी बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस, एंड ये 22वां एडिशन है। ये 22वां एडिशन रहेगा वर्ल्ड साइंस डे का, जो कि हम 10 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया? फिर 2002 में इसको पहली बार ऑब्जर्व करा गया। नेक्स्ट आते हैं स्टेट न्यूज़ पर। अभी चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी ने लॉन्च किया एक AI ड्रिवन चैटबॉट, जिसका नाम रहेगा बीरबल। ये CoreOver.ai, जो कि एक जनरेटिव AI पावर्ड कन्वर्सेशनल AI प्लेटफॉर्म है, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है बीरबल को। एंड ये जो चैटबॉट है ये आपको वेरियस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एंड गाइड करेगा सिटीजन्स टू अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज, उनकी हेल्प करने का ये काम करेगा। तो याद रख सकते हैं, सिटीजन्स को बेसिक सर्विसेज एंड बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए ये बीरबल लॉन्च किया गया चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी
चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा, जो कि है चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड। ये आपका एक AI ड्रिवन चैटबॉट इन्होंने लॉन्च किया है बीरबल के नाम से। फिर नेक्स्ट आ जाता है वाटर स्मार्ट किड मेघालय। ये कैंपेन लॉन्च किया गया मेघालय के द्वारा ताकि बच्चों को वाटर कंजर्वेशन के बारे में बताया जा सके, उनको सिखाया जा सके, उनको अवेयर कराया जा सके कि वाटर कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर उसी के साथ साथ यहाँ पर वाटर गार्डियन नाम से अवार्ड्स भी लॉन्च किए गए मेघालय के द्वारा ताकि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वाटर कंजर्वेशन में उनको यहाँ पे सम्मानित किया जा सके। एंड यहाँ पर आप विलेजेस का नाम देख सकते हैं जो रेसिपिडेंट हैं इस अवार्ड के, वाटर गार्डियन अवार्ड्स के, उनको यहाँ पे सम्मानित करा गया। ठीक है, तो वाटर स्मार्ट किड मेघालय ये तो कैंपेन का नाम है और वाटर गार्डियंस यहाँ के अवार्ड्स का नाम है जो कि लोगों को सम्मानित करा गया था। चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन पर। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया न्यू दिल्ली में। इंडिया ने होस्ट किया छठी असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। REC ने साइन किया MOU रेलटेल के साथ ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर इन टेलीकॉम, IT एंड रेलवे सिग्नलिंग साइन किया जा सके। देन डे NRLM इन्होंने सिडबी के साथ MOU साइन किया टू प्रमोट वीमेन एंटरप्राइजेस। IIS कानपुर ने एक MOU साइन किया IIT कानपुर, हॉल एंड DASI के साथ टू एम्पावर इंडियाज यूथ। फिर WHO एंड ILO ने मिलकर एक जॉइंट रिलीज किया और बताया कि जो लोग सन के अंडर काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, 1 in 3 डेथ उन लोगों की आपके नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर की वजह से होती है जो कि UV रेडिएशन से आती है। देन RBI गवर्नर ने रिलीज की कैफरल की फर्स्ट रिपोर्ट जो थी फिनटेक कैन एमर्ज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर ट्रेडिशनल बैंकिंग, कि ट्रेडिशनल बैंकिंग को फिटनेस सेक्टर आपका सब्सटीट्यूट कर सकता है। देन DFC ने ऑफर किया $553 million टू अडानी पोर्ट लेड CWIT। फ्लाइंग वेज ये वो पहली कंपनी बनी टू सिक्योर DGCA सर्टिफिकेशन फॉर UAS। वेंकट नागेश्वर चलासानी इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ EMFI। देन ये अभी नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है वास्प की, कहाँ पर, वेस्टर्न घाट्स इन केरला में। देन नेशनल आयुर्वेदा डे 10 नवंबर को। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर को। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी ने लॉन्च किया AI ड्रिवन चैटबॉट जिसका नाम रहेगा बीरबल। एंड मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया वाटर स्मार्ट किड मेघालय कैंपेन एंड अवार्ड जिसका नाम रहेगा वाटर गार्डियन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पर पुराने करंट अफेयर्स की। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू ब्रांड लॉन्च बाय NOCL? NOCL के द्वारा भी एक नया ब्रांड लॉन्च किया गया है, पूछा जा रहा है उसका नाम बताइए। NOCL क्या होता है आपका? नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, NCOL, नॉट NOCL, NCOL, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, राइट, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। इनके द्वारा नया ब्रांड लॉन्च किया गया। ऑर्गेनिक से याद रखेंगे भारत ऑर्गेनिक्स, ठीक। ये लॉन्च किया गया ड्यूरिंग अ 1 डे नेशनल सिंपोजियम जो था बेसिकली आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। एंड हम जानते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपके ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, इससे आपके न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलते हैं। नॉट जस्ट न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी अच्छे होते हैं और सॉइल हेल्थ के लिए भी। जो आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ग्रो करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, तो आपकी सॉइल भी हेल्दी रहेगी। इसी से रिलेटेड याद रखेंगे 6 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की बात की गई बाय द एंड ऑफ 2023। इसी के अलावा आप देखेंगे 5-6 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तो ये लॉन्च किए जाएंगे अंडर भारत ऑर्गेनिक्स। इसके अलावा अगर हम देखें शुगर, राजमा, बासमती राइस, दाल, तूर दाल, चना दाल, ये भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस किए जाएंगे। एंड टोटल में अगर देखें तो 20 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2023 यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे। फिर इसी के अलावा जो मेन एम रहेगा NCOL का वो क्या है कि फार्मर्स को बेनिफिट प्रोवाइड कराना फॉर दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग। इससे जो इनकम होगी वो फार्मर्स को यहाँ पे इनकी आमदनी बढ़ाने में, एज वेल एज यहाँ पर हम देखेंगे इससे जो सप्लाई चेन डेवलप होगी, एज वेल एज जो आपका सॉइल हेल्थ है उसको भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये NCOL का एम रहेगा। Which military station in India has been bagged or has bagged the Best Green Military Station Award? तो Best Green Military Station Award से किसको सम्मानित किया गया? वो है उधमपुर रेल मिलिट्री स्टेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड पोजीशन पे कौन सा आ जाता है? देहरादून मिलिट्री स्टेशन सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा रहेगा बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड के लिए? वो है उधमपुर मिलिट्री स्टेशन। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज बीन कन्फर्ड विद द हार्मनी फाउंडेशंस 19th मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस। तो याद रखेंगे इनका नाम क्या रहेंगी, ये है नरगिस मोहम्मदी। इनको अभी 2023 के
नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया, क्योंकि ये ईरानियन वीमेन के खिलाफ जो वहाँ पे राइट्स उनके छीने जा रहे हैं, जो उनको सप्रेस किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ यहाँ पे ये लड़ रही हैं। नरगिस मोहम्मदी ये भी जेल में भी हैं और इनको यहाँ पे 19th एडिशन ऑफ मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा फॉर सोशल जस्टिस। करेक्ट, नवंबर में ये मुंबई महाराष्ट्र में इवेंट होगा एंड उसके दौरान इनको यहाँ पे सम्मानित करा जाएगा इस 19th एडिशन ऑफ मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से, और 2023 में इनको नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। Next, name the bank that has received the approval from RBI to acquire 100% of the issued and paid up capital in Sonata Finance Private Limited for 537 करोड़ रुपीस। तो 537 करोड़ रुपीस के लिए 100% स्टेक बाय किया जा रहा है इन सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, किसके द्वारा? कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने साइन किया एक पैक्ट ऑन रेगुलेशन ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स विद विच कंट्री? मेडिसिनल प्रोडक्ट्स की रेगुलेशंस के लिए, करेक्ट, एक दूसरे को क्वालिटी ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, बेटर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए आपके मेडिसिनल यूज के लिए, करेक्ट। तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ ये एमओयू साइन किया? नहीं, एमओयू नहीं, मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट, MOI साइन किया है यहाँ पर, तो वो रहेगा नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड के साथ ये MOI साइन किया। फिर यहीं पे एक टर्म आ जाती है वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम। ये वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का भी सेकेंड एडिशन हुआ था, 6 से लेके 8 नवंबर के बीच में ये ऑब्जर्व किया गया था। एंड इस वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का एम क्या रहेगा कि जो मेडिसिन हैं, करेक्ट, वो बेटर क्वालिटी की मेडिसिन होनी चाहिए, करेक्ट, वो सस्टेनेबल होनी चाहिए एंड वो टाइमली एंड क्वालिटी के साथ लोगों को जब ज़रूरत हो तब पहुंच जानी चाहिए, करेक्ट। मतलब एक्सेस उसका ज़्यादा बेटर होना चाहिए एंड जो प्रोडक्शन है वो भी कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। अगर वो चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं होगी एंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी तो जो लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए उस मेडिसिन का वो नहीं मिल पाएगा, सिर्फ अमीर लोग ले पाएंगे, जो कि गलत है। ठीक है, एंड जो ये सेकेंड एडिशन ये कहाँ पे हुआ था? हॉग नीदरलैंड में ही हुआ था। एंड ये जो मेडिसिनल प्रोडक्ट के लिए जो मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड, ये कहाँ साइन किया गया था? ये भी हॉग नीदरलैंड में ही साइन किया गया था। नेक्स्ट है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। टीबी क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस। कहाँ पर होता है? आपके लंग्स में होता है। ये कम्युनिकेबल डिजीज है, राइट। तो यहाँ पर अभी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट रिलीज की गई। पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया था? तो WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया था, करेक्ट। एंड इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि 7.5 मिलियन लोग टीबी से इफेक्ट हुए 2022 में अलोन। मतलब साल 2022 में 7.5 मिलियन लोग इफेक्ट हुए थे टीबी से, जो कि हाईएस्ट एवर है सिंस 1995। देन याद रखेंगे 2022 में इतने ज़्यादा रिकॉर्ड है हमें क्यों देखने को मिले थे? रीज़न बीइंग कोविड-19 की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो केसेस में राइज देखने को मिला ऑफ टीबी। एंड ये जो डाटा लिया गया है 192 कंट्रीज़ का यहाँ पे डाटा लिया गया। फिर यहीं पे हम देखेंगे कि कोविड-19 की वजह से जो डेथ्स हैं वो भी ज़्यादा बढ़ गई थी, जो आपके टीबी से इफेक्टेड लोग थे। इवन यहाँ पे एक डाटा लिया गया है कि हमें टीबी को 90% से रिड्यूस करना है बाय 2023 से लेके 2027 के बीच में, करेक्ट। मेन चीज़ें क्या याद रखनी है? ग्लोबल टीबी रिपोर्ट किसके द्वारा? WHO के द्वारा रिलीज की गई। टीबी कहाँ पर होता है? आपके लंग्स को इफेक्ट करता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। एंड 7.5 मिलियन लोगों को यहाँ पे टीबी हुआ इन 2022, जो कि हाईएस्ट एवर है सिंस 1995। नेक्स्ट, व्हेन वाज स्नो लेपर्ड डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब? तो स्नो लेपर्ड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं स्नो लेपर्ड डे अक्रॉस द ग्लोब। स्नो लेपर्ड की बात करें तो आपका इसका जो साइंटिफिक नेम रहेगा वो क्या है? पैंथेरा यूनिशिया। अगर मैं टाइगर की बात करूं तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम क्या रहेगा? पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, और जो स्नो लेपर्ड हैं इनकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, क्योंकि इनकी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, इवन इनको रेड लिस्ट में मेंशन किया गया ऑफ IUCN, तो इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली साइंड अ मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट विद LIC पेंशन फंड? वो है केफिन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, किस स्टेट ने टॉप किया? विच स्टेट हैज टॉप्ड द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? आप इक्विटीज में एक बंडल करके अलग अलग म्यूचुअल फंड्स बना देते हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड किस स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया इन द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया?
तो महाराष्ट्र स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया है, सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है महाराष्ट्र। उसके बाद आ जाती है गुजरात स्टेट। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र ने 7.47 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। गुजरात की बात करें तो 2.21 लाख करोड़ की। फिर कर्नाटका थर्ड पोजीशन पे आ जाता है विद 1.99 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ। टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें म्यूचुअल फंड सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है तो 25.85 लाख करोड़ की हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। करेक्ट। लोग अब जैसे एसआईपी करा लेते हैं। एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हु वन बैलन डियोर अवार्ड इन मेंस कैटेगरी? ये बैलन डियोर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है इन द फुटबॉल स्पोर्ट में। करेक्ट। यहाँ पे मेंस एंड वीमेन कैटेगरी की याद रखेंगे। मेंस कैटेगरी में तो जीता है लायनल मेसी ने, और वीमेन कैटेगरी में किन्होंने जीता है? वो है आइताना बॉनमाती। ये स्पेन से बिलोंग करती हैं एंड लायनल मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। फिर याद रखेंगे ये 67th एडिशन था आपका बैलन डियोर अवार्ड का, एंड लायनल मेसी ने इसको 8वीं बार जीत लिया है। वेयरएज अगर हम बात करें वीमेन बैलन डियोर अवार्ड की, ये 2018 में स्टार्ट किया गया था और ये 5th एडिशन था वीमेन्स बैलन डियोर अवार्ड का। वेयरएज 67th एडिशन था ओवरऑल बैलन डियोर अवार्ड का, जिसमें से 8 बार, ये 8वीं बार लायनल मेसी ने यहाँ पे जीत लिया है। ये बैलन डियोर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? इज प्रेजेंटेड बाय फ्रेंच मैगजीन जिसका नाम है फ्रांस फुटबॉल, एंड 1956 से ये अवार्ड प्रेजेंट करते आ रहे हैं। पास्ट सीजन में जो प्लेयर अच्छा खेलते हैं और जिनकी बेटर अचीवमेंट होती है उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं मेसी एंड बॉनमाती, इनको यहाँ पे बैलन डियोर अवार्ड से सम्मानित करा गया। हु हैज रिसीव्ड ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलेंथ्रॉफी एंड CSR? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिलेंथ्रॉफी के लिए भी किनको ऑनर किया गया ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से? न्यू दिल्ली में इनको सम्मानित किया गया। ये है नीता अंबानी। नीता अंबानी हम जानते हैं ये स्पाउस है किनकी? मुकेश अंबानी की। नीता अंबानी फाउंडर एंड चेयरपर्सन है रिलायंस फाउंडेशन के फिलेंथ्रोपिक आर्म की। इसी के अलावा याद रखेंगे नीता अंबानी को किसके द्वारा? USISPF, ये क्या है? US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इनके द्वारा न्यू दिल्ली में यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंड इनके चेयरपर्सन कौन रहेंगे? जॉन चैम्बर्स, इनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं जॉन चैम्बर्स, एंड ये है नीता अंबानी। एंड नीता अंबानी जो अपना वर्क कर रही थी टुवर्ड्स वीमेन एम्पावरमेंट, सपोर्टिंग द चिल्ड्रन एजुकेशन, प्रमोटिंग इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट, करेक्ट, एंड डेवलपिंग स्पोर्ट इन इंडिया, इनके लिए यहाँ पर इनको सम्मानित करा गया। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे नीता अंबानी 2016 में वो पहली वीमेन बनी थी, पहली इंडियन वीमेन जिनको IOC का मेंबर अपॉइंट किया गया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर अपॉइंट किया गया था 2016 में नीता अंबानी को। एंड यही वो रिप्रेजेंटेटिव थी ऑफ इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिन्होंने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था। एंड इन्होंने 141st IOC सेशन को मुंबई महाराष्ट्र में होस्ट किया था। ठीक है। फिर याद रखेंगे नीता अंबानी, इनको अभी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर फिलेंथ्रॉफी एंड CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स पर। अभी रिसेंटली NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है UPI सेफ्टी एम्बेसडर। ये UPI सेफ्टी एम्बेसडर का काम क्या रहेगा? बेसिकली UPI के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना और लोगों को जागरूक करना कि UPI एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है फॉर पेमेंट। एंड इसी के लिए किनको अपॉइंट किया गया है UPI का सेफ्टी एम्बेसडर? वो रहेंगे पंकज त्रिपाठी सर। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये काफ़ी फेमस एक्टर है। इनको एक बहुत ही दिग्गज नाम से भी जाना जाता है जो कि है कालीन भैया, क्योंकि इनका जो रोल था मिर्ज़ापुर में, उनके लिए इनको कालीन भैया के नाम से भी काफ़ी फेमस रहता है। इनका जो पहला नेशनल अवार्ड मिला था, नेशनल फिल्म अवार्ड, इनको 2018 में मिला था, और इनको फिर सेकेंड नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया 2021 में। NPCI की बात करें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 2008 में ये लॉन्च हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र इनका हेडक्वार्टर रहेगा, और यहाँ पे MD एंड CEO कौन रहेंगे? दिलीप एसपे। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने यहाँ पर अभी 2 ड्रोन्स को इंपोर्ट किया है, बाय करने की बात करी फ्रॉम इजराइल से। ये जो ड्रोन रहेंगे ये है मेल UAS। मेल UAS क्या होता है? मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। करेक्ट, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ये आपके ड्रोन रहेंगे। 2 ड्रोन का नाम क्या रहेगा? एक है हर्मीस 900 और दूसरा ड्रोन रहेगा आपका हेरॉन Mark 2 ड्रोन।
हर्मीज 900 स्टारलाइनर एंड हेरॉन मार्क 2, ये आपके 2 ड्रोन रहेंगे जो कि अभी इनसे प्रोक्योर किए जाएंगे इजराइल से। एंड इजराइल बेस्ड एल्बिट सिस्टम्स कंपनी का नाम है जो इनको डेवलप करती है। तो याद रखेंगे 2 ड्रोन्स हैं इंडियन आर्मी के द्वारा प्रोक्योर किए गए, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, मतलब हम कह सकते हैं इंडियन फोर्सेस के द्वारा यहाँ पे प्रोक्योर किए गए फ्रॉम इजराइल। इन 2 ड्रोन का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोफेसर सारंग दियो। ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से बिलोंग करते हैं। ये यहाँ पे प्रोफेसर ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट हैं। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज अ मेंबर ऑफ द स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर ट्यूबरक्लोसिस, जो कि WHO के द्वारा सेटअप किया गया है। ये 15 मेंबर की एक कमेटी रहेगी एंड इस 15 मेंबर की कमेटी को जो हेड करेंगे वो कौन रहेंगे? जो इस 15 मेंबर की कमेटी को हेड करेंगे वो है एथल लियोनर माइकल, करेक्ट। ये यहाँ पे हेड करेंगे इस 15 मेंबर की कमेटी जो WHO के द्वारा सेटअप की गई थी। एंड ये एक स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है फॉर ट्यूबरक्लोसिस, WHO के द्वारा सेटअप किया गया। 15 मेंबर का ये एक्सपर्ट ग्रुप रहेगा, ठीक। चलिए, और टीबी जो होती है आपकी ट्यूबरक्लोसिस, ये आपके लंग्स को इफेक्ट करती है एंड ये कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला क्वेश्चन, बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस, ये थीम रहेगी of which special day celebrated on 10th of November. Second, APAR, which was seen in news, is a registry associated with which field? और तीसरा, India undertook Bongo Saga 23 and corporate exercise with the Navy of which country? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों का जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। एंड पहली बार जो बच्चे आज हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक सजेशन, जल्दी से जाइए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो बच्चे बहुत टाइम से हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जल्दी से जाइए और हमारे को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि अफेयर्स क्लाउड एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके करंट अफेयर्स का, और हम कितनी अच्छे से प्रिपरेशन कराते हैं आपकी करंट अफेयर्स की। हर सेगमेंट को हर तरीके से हम चाहते हैं हम बच्चों को हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। करंट अफेयर्स वो रटे ना बल्कि समझें और समझ के चीज़ें याद रखें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.